Okay, good morning, Naresh. So we will wait for a few minutes. Yeah. All right, students, so we'll begin anyway. All right, so good morning and welcome to the class.
I am Praneet and I'll be taking this subject of sense of Indian knowledge and tradition. All right. So आपका I think in every semester आपका एक humanities वाला subject होता है, right? So उसका idea ये है कि being engineering students, you might not be keeping so much informed about what is happening on the other front, which is humanities, जिसमें all these geography, history, political science ये सभी आ जाते हैं. So this is why PTU has made sure कि जो हमारे engineers हैं, they're not just good engineers, but they also know about the rest of the world, also about the rest of what is happening around. ठीक है जी? So इसलिए you have this subject. I believe आपका पिछले semester में भी कोई ऐसा subject होगा, maybe environment science or something, right? And so on and so forth. In the next semester also you might have one subject from the humanities. All right. So before we begin, I just want to get to know you. So it will be a good idea if you could just introduce yourself very briefly, मतलब 1-2 sentences में, कोई English हिंदी कोई problem नहीं है, right? So we will start with Naresh. हाँ जी Naresh, am I audible? Yes, ma'am. All right. So Naresh, just tell me something about yourself. I know you are Naresh from mechanical engineering, right? Other than that, anything you would like to add? क्या आपको अच्छा क्या लगता है, क्या interests हैं? कुछ भी नरेश, एनीथिंग. व्हाट इज योर हॉबी, मतलब आपको क्या पसंद है? यू कैन जस्ट से इट इन वन सेंटेंस. मैम मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है ओके, दैट Free इज time. वंडरफुल. हाँ. और मैम मुझे एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है. ओके, आपने फिर वो देखा होगा उसका नोटिस जो हमारा हाँ जी. ई गेम्स हो रही है हाँ जी, हाँ जी, मैम. है ना? तो यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट एज वेल. हाँ जी. दैट्स नॉट अ कंपल्सन, जस्ट एन आइडिया कि अगर आपको इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, राइट, तो आप उसमें कर सकते हैं. मैंने किया है मैम. ओके, किया, दैट इज वंडरफुल. चलो, ऑल द बेस्ट फॉर दैट. थैंक यू मैम. Okay, so now let's talk to Maninder. Yes, ma'am. Yes, good morning, Maninder. So you can also tell me just in one sentence what you like to do. Anything about yourself. मैम एनिमेशन में इंटरेस्ट है मेरा. Animation में. हाँ जी. All right. तो अभी आपने उसमें कोई प्रोजेक्ट वगैरह कभी कुछ ऐसा बनाया है? बनाया तो नहीं मैम, वैसे मैं फोटो एडिटिंग वगैरह सब कुछ कर लेता हूँ. Okay, okay, all right. So that is also a very creative field, I believe. है ना? जैसे आजकल अब इतना कुछ सोशल मीडिया पे हो रहा है, हाँ जी. राइट? हाँ जी. इवन एडवर्टाइजिंग में ग्राफिक्स वगैरह काफी यूज होते हैं. हाँ जी. हाँ जी. बिल्कुल. तो उसमें काफी रेलेवेंट है आपका इंटरेस्ट. हाँ जी मैम. ओके, चलो, दैट इज वंडरफुल मनिंदर. सो व्हाट अबाउट Thank you, ma'am. जसप्रीत? तो हाँ जी जसप्रीत, एनीथिंग इन अबाउट योरसेल्फ इन वन सेंटेंस. Yes, Jaspreet, am I audible? All right, then what about Rudransh? Good morning, ma'am. हाँ जी, good morning Rudransh. My name is Sudransh. I have passed my 10th from CBSE MGN Public School Darshnagar and 12th from Saint Soldier in non-medical, which is also CBSE. And now I am doing BTech in mechanical engineering. Okay, so you are from MGN Adarsh Nagar? Yes, ma'am. That My is. mother is teacher is MGN Adarsh Nagar. Oh, wonderful. Who's your mother? Yes. I mean, My what's your mother mother's is name? My mother name is ma'am Kusum. He is a Hindi teacher from 5th to 8th. You know what? I have been in her class. I am also What? from MGN. Okay. Like, throughout my schooling is from MGN, and I remember Kusum ma'am.
Okay. Okay, okay, okay. जी There ऑफ is कोर्स also Harsh Thakkar sir ना? हाँ जी हाँ जी. Yeah, in our college मम्मा ने उनको भी पढ़ाया हुआ है. Oh, तो that वो is wonderful. See कितनी, yes, वो हर्ष it's कक्कर a सर very भी small पढ़े हैं. world, right? जैसे अभी तक मैं इधर Yes, किसी yes. एमजीएन को के स्टूडेंट को मिली नहीं थी, so you are the first one that I am meeting from एमजीएन Yes, yes. आदर्श नगर. बाकी अर्बन स्टेट वाले 2-3 हैं स्टूडेंट्स. हाँ तो जी, हाँ आई जी. थिंक मम्मा भी उधर ही रुद्रांश. पढ़ाते थे तो. हाँ जी, हाँ जी. मम्मा आपका, भी उधर ही पढ़ाते थे तो फिर आप मुझे 10th तक मैं शायद उधर याद पढ़ा. होगे, लाइक मैंने ना मैम को देखा है, मतलब व्हेन यू वर वेरी यंग, आई थिंक आई हैव सीन यू इन स्कूल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. ओके. मम्मा कभी कभी लेके आए तो होते थे मेरे स्कूल में, तो मैं ओके, सुनता होता था. तभी मुझे याद है कि मेरे को, हाँ, कुसुम मैम, आई रिमेम्बर हर वेरी वेल. So it is so Yes. nice to meet somebody from the same school and you know the teachers also. Chalo, Yes. Thank you, ma'am. that is a good Yes. start, right? All right. What about Danish? Hello, good morning, ma'am. Good morning, Danish. Yes, ma'am. So tell me something about yourself, Danish. What do you like to do? आपकी hobbies, interests? My name is Danish Vatla. I have completed my senior secondary education from APJ school in non-medical stream, and now I am continuing BTech from the Khalsa College. All right. Anything else, ma'am? कुछ आपको क्या पसंद है when you are free? आपकी hobbies क्या हैं? I like to play the games and also like to read books when I am free. Okay, that is wonderful. What sort of books do you read? Like the ma'am, I have recently read it, The Merchant of Venice, That is English wonderful. books. Hmm. Yes, ma'am. So when I was in college, I had participated in this play, Merchant of Venice, right? Okay. So I remember it very, you know, in even in details, because once you enact the play, आप उसमें acting कर रहे हो, आपको पूरी उसकी story, dialogue भी याद हो जाते हैं, Yes, ma'am. right? So that Which is, character did you choose, ma'am? I was playing Nerissa. Okay, Narisa. पोशिया की मतलब वो Portia. होती है, friend होती है ना? हाँ जी मैम. So I was playing her character. Okay, okay, ma'am. All right. So Danish, it's a very good habit, you know, the habit of reading. So always Yes, keep ma'am. that up and always find time for it also. Yes, ma'am. जैसे आपका आई बिलीव काफी हेक्टिक होता होगा शेड्यूल. यू हैव क्लासेस, देन यू हैव टू वर्क ऑन योर असाइनमेंट्स, योर प्रोजेक्ट्स, राइट? Yes, ma'am. बट अगर आप थोड़ा सा रोज का टाइम निकालोगे ना रीडिंग के लिए, आपको काफी डिफरेंस फील होगा, बिकॉज यू विल Yes, बी. ma'am. रात को जैसे हम्म. रात को पढ़ लो, फिर वो रात को होता टाइम. वंडरफुल. रात को जैसे कहते हुए हैं कि फोन को पहले साइड पे रख देना चाहिए एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर यू स्लीप, so you हाँ can जी give मैम. that time to reading. Okay, wonderful, हाँ Danish. जी मैम. It was nice Thank you, talking to ma'am. you. So now we have Vishal in the class. Yes, Vishal. Am I audible? हेलो सतिका मैम. हाँ जी, सत श्री अकाल विशाल. मैम माय नेम इज विशाल सिंह. आई एम फ्रॉम ब्यास, अमृतसर. All right. And आपके what are your hobbies, interests? माय हॉबीज स्पोर्ट्स मैम. Okay, sports. किस sports बेटा? Which game in particular? मैम क्रिकेट. मैम उधर सारियां स्पोर्ट्स खेल रही ਦੀਆਂ. Okay, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ e-games ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ participate? मैम करांगे ਜੀ. ਚਲੋ, that is good. ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ. ਹੁਣ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਨਲਾइन भी हो रहा है, you, I think you must participate, right? मैम इसके कोई प्राइजेस भी हैं? क्या है बेटा इसके? मैम इसके कोई मतलब प्राइज वगैरह भी मिलेंगे जो Yes, yes. हाँ जी, I think for every category they will pick 2 to 3 winners. उसके रूल्स में मेंशन होगा. तो आई थिंक जैसे 1-2 इवेंट्स जो मुझे याद है, स्किपिंग का इवेंट है, प्लैंक्स का है, राइट? सो दोज ऑफ यू हु गो टू जिम, आपके लिए तो वो काफी इजी होगा, राइट? एंड इवन दोज ऑफ यू जो स्पोर्ट्स में है उनके लिए भी काफी इजी होगा. ऑल राइट. सो अभी जसप्रीत से बात नहीं हुई है. जसप्रीत,
हाँ जी जसप्रीत, एम आई ऑडिबल? चलो anyway we can come back to Jaspreet later. So beta just पहले I'll start briefly with this subject, right? So पहले आपको syllabus थोड़ा सा दिखाती हूँ. No doubt syllabus is थोड़ा सा मतलब only the pointers have been given. It's not as you know clearly understood. So even for me काफी open ended भी है. Open ended का ये फायदा हो जाता है that we have a lot of scope to cover various topics, right? So we don't need to stay limited to what our syllabus is. All right. So Hanji, is the screen visible to all? So this is the syllabus, essence of Indian traditional knowledge. ठीक है जी. तो इसमें आपका इधर no doubt they have mentioned that there are external 60 marks, but what I have been told that only आपका internal का ही 100 marks का है, right? बाकी इसकी भी clarity हम कर लेंगे. I don't think so you have a university exam for this particular subject, right? So the objective, what is the course objective? As you know, for every syllabus, every course you have an objective given कि इसे क्यों include किया गया. Similarly, इसको क्यों include किया गया? See, one point, it is part of our heritage, it is part of our culture, right? जो भी हमारी traditional knowledge है, कोई जो हमें पता है. If I talk about, you know, आपने ऋग्वेदा सुना होगा, उपनिषद सुना होगा, ठीक है. डोंट वरी अगर नहीं भी सुना, नो प्रॉब्लम, वी आर गोइंग टू कवर दोस. तो ये वाली पुरानी, बहुत पुरानी बुक्स हैं, राइट? ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक तब लिखी गई थी. और इसमें जो भी है ना, मतलब वट एवर वॉज रिटन, अ लॉट ऑफ दोज थिंग्स आर स्टिल रेलिवेंट. एंड दिस मेक्स अस वंडर कि इंडिया कितनी एडवांस सिविलाइजेशन थी कि इवन जीरो वी इन्वेंटेड, राइट? इवन द न्यूमरल सिस्टम जिसको अरेबिक कह देते हैं, वो भी इंडिया की इन्वेंशन थी. हाउएवर जब तक वो वहां पे पहुंचा तो पीपल थॉट कि अरेबिया में ही इन्वेंट हुआ, तो उसको अरेबिक न्यूमरल जिसका नाम पड़ गया. ऑलराइट, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो वी हैव वेरी रिच ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज. ठीक है, इंडिया में काफी बुक्स लिखी गई हैं. पहले मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी, हैंड रिटन, राइट? प्रिंटेड बुक्स तो बहुत मच लेटर आई हैं, राइट? सो ऑल दैट वी वाइट. एंड अभी अगर हम देखा जाए ना, तो हमारी जनरेशन इतना अवेयर नहीं है इन चीजों के बारे में. अगर आप अभी न्यूज में देखेंगे, योगा को कितना सपोर्ट कर रहे हैं. दे आर लाइक इंटरनेशनल योगा डे स्टार्ट हुआ है, राइट? सो एवर सिंस देन दे आर ट्राइंग टू यू नो spread the word of yoga, how helpful yoga is far and wide. स्कूल्स में, कॉलेजेस में काफी अवेयरनेस कैंप्स वगैरह होते हैं, राइट? कुछ ना कुछ इवेंट्स होते हैं. इवन गवर्नमेंट इज वेरी यू नो कंसर्न्ड अबाउट इट. व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट वाज नोटिसिंग कि बाहर की, आप अगर देखोगे ना, यूरोप में, अमेरिका में, yoga is a very big thing. People have started taking to yoga rather than going to gym or running और जो भी बाकी सारे हमारे वर्कआउट के you know mediums हैं. Why this sudden interest in yoga? Because अभी इस पे इतनी रिसर्च हो रही है, इतने इस पे साइंटिस्ट आर वर्किंग, चेकिंग के how is it so beneficial, right? People no doubt do say कि योगा से ये ठीक हो जाता है, you don't face this problem, that problem. But now the doctors, scientists, they are also going into the depth of why, how is it so helpful. And we just realized कि जो yoga is very Indian invention, ये इंडिया में हुआ था, right? Start. But now everybody in the world is following it, and there एक word होता है appropriating it, कि एक ना किसी चीज को अपना kind of claim करना, right? So this is how you know the Indian government woke up to this fact that we need to reclaim what is ours. So yoga is essentially Indian, so we need to make sure that we preserve it. ये ना हो कि इधर से गायब हो जाए, then some years later it is only something of the West, right? So this is why this course has also been included, so that you know हमारा जो Indian traditional knowledge में क्या आता है, right? हमारा knowledge system कैसे है, what is at the core of it. Then I am sure you have heard these words के जो एक होता है ना कि reasoning, आपका aptitude test में भी आता है ना reasoning. तो एक रीजनिंग के ना काफी मेथड होते हैं कि आपने रीजन करना कैसे, अगर आपने कोई कंक्लूजन निकालना है कैसे निकालना है, राइट? तो उसमें हमारे पास ये सारे डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स होते हैं कि कोई चीज रियलिटी को कैसे मानता है कि जो उसमें दिखता है वही रियलिटी है. कोई सोचता है कि नहीं, जो दिखता है एंड कुछ नहीं भी दिखता वो भी रियलिटी. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आई थिंक एनीबडी ऑफ यू हैज बीन टू जापान. इट्स क्वाइट अनलाइकली क्योंकि जापान इतनी टूरिस्ट प्लेस है नहीं है,
कन्वेंशनल, राइट। बट अगर हमने कभी नहीं भी देखा जापान मान लो, या एंटार्क्टिका कभी नहीं भी देखा लाइव अपनी आंखों से, बट वी स्टिल बिलीव कि यस देयर इज अ कॉन्टिनेंट नेम एंटार्क्टिका, राइट। देयर आर पेंगुइन्स, ठीक है जी। सिमिलरली कई स्कूल ऑफ थॉट होते हैं कि जो हमें चीज नहीं भी दिखती है, जरूरी नहीं है कि दैट इज नॉट रियल, दैट ऑल्सो कुड बी रियल। तो ये कुछ ऐसे ना स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, दैट इज के एक अप्रोच करने का तरीका है कि किसी चीज को कैसे हमने उसका कंक्लूजन पर कैसे पहुंचना है, उसकी रीजनिंग कैसे करनी है कि अगर ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, राइट। तो ये हमारे आपको आप जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ना, यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट इंडियन ट्रेडिशनल जो नॉलेज है इसमें इतना कुछ है कि जो उस टाइम पे थिंकर्स थे, जो फिलोसफर्स थे, उन्होंने इतने डेप्थ में सोचा, दे हैव रिटन सो मच फॉर अस, राइट। एंड अभी क्या है, सिंस वी आर नॉट टेकिंग मच इंटरेस्ट इन इट, सो दिस माइट डाई। जैसे कई बार होता है ना, लैंग्वेजेस यूज नहीं होती, दे जस्ट वैनिश, दे मूव आउट ऑफ आर यूजुअल लोकल जो लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि उसके एक तो स्पीकर्स बहुत कम रह जाते हैं, फिर वो जो स्पीकर्स हैं दे माइट और माइट नॉट बी मेकिंग द एफर्ट कि नेक्स्ट जनरेशन को भी सिखाएं, राइट। तो ऐसे करते करते लैंग्वेज खत्म ही हो जाती है। इसलिए जस्ट टू सेव आर ट्रेडिशन, आर नॉलेज, जो भी हमारे पास इंडियन एक इन्वेंशन है या कुछ भी है, कोई फिलोसफी है, इसीलिए ये एक आपको नो डाउट कोर्स भी दिया गया है। अदरवाइज ऑल्सो इस टॉपिक पे काफी रिसर्च हो रही है, काफी डिस्कशन हो रही है, जैसे अभी योगा को कितनी प्रमोट कर रहे हैं, राइट। ऐसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने एक कह लो डेटाबेस बनाया है जिसपे वो सारी ऐसी बुक्स को डिजिटाइज करके डालेंगे, सो दैट एक जगह पे सारा ऐसे जो हमारे पास ये एक ट्रेजर है, राइट, नॉलेज का, that can all be preserved and preserved for the later generations, right। क्योंकि दे नो हमारी जनरेशन है, वी आर यूजिंग लैपटॉप, वी आर यूजिंग स्मार्टफोन्स, ठीक है, हम इंस्टाग्राम पे हैं, वी आर यूजिंग स्नैपचैट, सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, के एक ब्रिज बनाना है, ठीक है। अगर बुक्स पढ़ी रहेंगी, हम हो सकता है हम कभी लाइब्रेरी जाएं या ना जाएं, क्योंकि हम लाइब्रेरी में क्या प्रेफर करेंगे, डिजिटल लाइब्रेरी, राइट। तो इसीलिए इन सब को अब डिजिटाइज भी किया जा रहा है, एक डेटाबेस बनाया जा रहा है जो भी इंडियन सारी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका। हम वी विल बी रीडिंग अबाउट दीज एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट आल्सो इन डिटेल, राइट। सो अभी coming back to our course, so course objective is that it aims at imparting basic principles of thought process, reasoning and inferencing. Sustainability is at the core of Indian traditional knowledge system, राइट। तो नॉलेज हमने गैदर कैसे करनी है, तो उसके ये मेथड होते हैं कि रीजनिंग से, इन्फ्रेंसिंग से, राइट। कि आपने देखा 2 + 2 = 4, तो आप समझ आते हो कि इससे प्लस सिंबल का क्या मीनिंग हुआ, इक्वल टू का क्या मीनिंग हुआ, राइट। तो अब उससे ये प्रिंसिपल निकाल के आपको अगर मैं कोई डिफरेंट वर्ड्स दूंगी, वर्ड्स कह रही हूँ, डिजिट्स दूंगी, आप उनको भी ऐड कर पाओगे, राइट। सो ऐसे कुछ तरीके हैं हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम में टू नो थिंग्स, ठीक है। अगर ये चीज ऐसे है तो ये ऐसी चीज क्यों है, ऑलराइट। And a holistic lifestyle of yogic science and wisdom capsules in Sanskrit literature are also important in modern society with rapid technological advancements and societal disruptions, right? So ये बात वही वो वाली बात है कि योगा नो डाउट पुरानी साइंस है, बट जो लाइफस्टाइल योगा में प्रोपगेट किया जाता है या प्रमोट किया जाता है या जो सिखाया जाता है, दैट इज रेलिवेंट इवन टुडे, राइट। सिमिलरली ऑल जो भी हमारी लिटरेचर, पुरानी लिटरेचर से हमें जो भी विजडम मिलता है, right? So I am not sure if you are aware of this Vedic maths. हाँ जी, is anybody aware? आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, तो I am sure. Maybe in your first year of engineering, or maybe when you were, preparing like for your entrance tests for non-medical, right? Even in your aptitude tests. तो Vedic maths में चलो I'll just give you, see I am also not too thorough with it, जो मुझे briefly पता है, so I'll just share that कि उसमें काफी ना ऐसे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, शॉर्टकट्स दिए हुए हैं फॉर कैलकुलेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी वर्ड का डिजिट का स्क्वायर निकालना है विच एंड्स विद 5, तो उसका एक शॉर्टकट मेथड है विच ऑलवेज वर्क्स, राइट, बट इट इज ओनली वर्किंग फॉर द डिजिट्स विच एंड विद 5, राइट। तो ऐसे काफी सारे वैदिक मैथ्स में ना, जो भी मैथ्स की रिलेटेड बुक है उसमें काफी सारे से फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। नाउ इफ यू विल सी दे आर स्टिल रेलेवेंट एंड व्हाट दे आर आल्सो फास्टर देन द कन्वेंशनल मीन, राइट। तो इसीलिए नो डाउट अभी हमारे पास मॉडर्न में तो कैलकुलेटर भी आ गए हैं, राइट, यू डोंट इवन नीड टू कैलकुलेट ऑन योर ओन, बट स्टिल दीज थिंग्स दे हेल्प यू, दे आर faster than conventional means. And yes, technology is not always reliable, so it's a good idea if you know
those formulas as well. All right, then इसीलिए बस यही बात इसमें होगी हमारे कोर्स में कि जो भी ये हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है हमारे पास, हाउ इज इट रेलेवेंट इवन टुडे एंड व्हाई डू वी नीड टू read about it or learn about it. Then Indian perspective of modern scientific worldview and the basis principle of yoga and holistic healthcare system. So again, we will be discussing about yoga, right? But of course, अब आप don't worry, ये health class नहीं बन जाएगी कि आपको योगा का ही पढ़ेंगे, हम बाकी और काफी कुछ पढ़ेंगे. Indian traditional knowledge में बहुत कुछ आ जाता है, right? So basic structure of the knowledge system, modern science and the knowledge system, yoga and holistic healthcare, case studies, राइट. सो पतंजलि, आई एम श्योर आपको पता है, अभी तो ये ब्रांड है, राइट, सपोर्टेड बाय रामदेव. बट पतंजलि बेसिकली वाज वन पर्सन, अ योगा गुरु, लॉन्ग अगो, many hundreds of years ago, and he has written योग सूत्र. तो ये एक पुरानी बुक है about all about yoga, the various asanas, किसका क्या फायदा है, कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन से आसन करने चाहिए, राइट. वो प्रिस्क्राइब करते हैं ना कि if you have lower back pain you should be doing this asan, if you have this joint pain के लिए ये वाला आसन, right. So all that comes from Yog Sutra of Patanjali. So this is, these are some recommended books, but you don't have to read any books for this, right. Whatever course material will be there, I will provide it to you. जो भी notes होंगे, कुछ भी मुझे लगेगा relevant है, right. In case I find some relevant video for you or I find some relevant web page for you, I will be sharing the same. All right. So we have problem based, again this is how we are going to approach it. See, this subject is more going to be about discussions. I want to know your viewpoint. ठीक है, आप इसके बारे में क्या सोचते हो या आपने इसके बारे में क्या सुना है, any topic in question, right. Because otherwise अगर मैं सिर्फ पढ़ाऊंगी and you are at the other end listening to me, you will get bored, right. So to make it interesting, we are going to discuss a lot. I will be asking you questions, you can ask me questions, right. So this is how we are going to explore this subject, right. Then this is again थोड़ा सा philosophical tradition का पढ़ेंगे कि philosophy क्या चीज है. Then हमारे पास different schools of philosophy कौन से हैं, right. तो philosophy basically होता है कि एक नजरिया आपका. It could be a नजरिया of looking at life. It could be a नजरिया of कि आप जिंदगी कैसे अपनी spend कर रहे हो. एक वो हो गया perspective कि आप decisions कैसे बनाते हो. Like कुछ होता है ना कि कईयों को, for some people material wealth is very important, for some people it is not important at all. वो तो सारा कुछ छोड़ भी देते हैं. अगर कोई जो for example जो हमारे social workers हैं, right, now they are into social work, they know कि ये कोई इतना profitable field नहीं है. ठीक है, आप social work कर रहे हो, आप charity works कर रहे हो, अगर आप सारा टाइम उसी में रहते हो, of course आपको ना अपने लिए इतना टाइम मिलेगा ना फैमिली के लिए इतना टाइम मिलता है. इट्स नॉट कि आपके वहां पे बहुत अच्छा पैकेज होगा, पैकेज वाला कॉन्सेप्ट वहां नहीं एग्जिस्ट करता, राइट, क्योंकि आप सेवा कर रहे हो, समाज सेवा. ऑल राइट. तो फॉर देम पीपल, दे आर डिराइविंग देयर हैप्पीनेस फ्रॉम डूइंग दैट वर्क, राइट. सिमिलरली अब कई लोग दे आर वेरी ड्रिवन, वेरी एम्बिशियस, जो हमारे एमएनसीज में होते हैं, द सीईओज, राइट, जैसे जो ये सारे स्टार्टअप्स वाले हैं, उनकी विजन डिफरेंट है. ठीक है, उनका आइडिया होगा कि वी हैव टू मेक अ डिफरेंस हियर इन लाइफ. And of course, in doing that, they are also earning well. They are earning good profits. ठीक है, अभी जैसे उसका आया था जो हमारा Amazon का है, Jeff Bezos, right? Now we know, yes, he is a very rich man. He owns the whole Amazon empire जो है, ठीक है, जो भी उसमें commercial सारे जो enterprises हैं, right? And recently he went to space. ठीक है, so he had this space flight, very brief, but उसका कितना criticism हुआ है कि this, you are just one rich person. And you don't have the right कि आप इतना ज्यादा pollution create करो, इतना ज्यादा carbon footprint छोड़ो, right. And also they were criticizing that the same money, right now we are in the middle of a pandemic, right, a lot of people have lost their jobs, they cannot afford healthcare, we need more hospitals, more health workers, so on and so forth. कितनी problems है इसमें. How can you feel justified while spending so much money on this very stupid pursuit, right? But now Jeff Bezos is sort of a person who believes in that type of philosophy. I am for myself, right? I have the money, I have earned it, so it's my मर्जी कि मैं उसको कहाँ पे कैसे spend करूँ. So ये एक उनकी philosophy है, right? किसी और की कुछ different philosophy होगी. So philosophy in very short words, in very brief words, in very simple words, is your way of looking at things around you, your way of approaching life, your way of spending your life, right?
सो अगर आप भी ध्यान से सोचोगे ना, जो आपका भी एम ऑफ लाइफ है, इट इज समहाउ वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिलोसफी यू हैव। अगर अब किसी को एनिमल्स बहुत पसंद है तो वो पर्सन ऑटोमेटिकली विल ट्राई टू हेल्प एनिमल्स इन सम वे। किसी को इन्वायरमेंट से बहुत प्यार है, तो आप उस चीज का ध्यान रखोगे। आप इवन चाहे आप कुछ कह लो बहुत बिग लार्ज स्केल पे नहीं कर रहे, बट इवन जो छोटी छोटी बातें आप उसमें भी ध्यान रखोगे कि अगर कहीं पास में जाना, यू वुड प्रेफर टू गो वॉकिंग रादर देन कि आप अपना बाइक या कार लेके जाओ, कि एवं क्यों इतना पेट्रोल फूकना या क्यों पोल्यूशन क्रिएट करना व्हेन आई कैन वॉक दैट वे। सिमिलरली अगर आप ज्यादा इन्वायरमेंटली कॉन्शियस हो, यू विल बी यूजिंग पेपर वेरी वाइजली, राइट? पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज आर कट फॉर मेकिंग पेपर। तो आप पेपर वेस्ट नहीं करोगे कि ठीक है अगर कोई नोटबुक बची है विच इज स्टिल ब्लैंक, ओनली फ्यू शीट्स आर यूज्ड, यू आर गोइंग टू यूज इट इन सम वे। आप उसको यू वोंट जस्ट थ्रो इट अवे, राइट? सो दैट इज हाउ philosophy is what philosophy is। and Indian philosophical tradition में भी ऐसे कुछ schools हैं जो हमें बताते हैं कि लाइफ को कैसे अप्रोच करना है, व्हाट इज रियलिटी, वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट, राइट? तो ऐसे हमारे डिफरेंट स्कूल्स हैं। वी विल बी रीडिंग वेरी ब्रीफली अबाउट दोस, क्योंकि आई डोंट वांट टू बर्डन यू विद सो मेनी फैक्ट्स, राइट? इसमें नहीं तो अगर हम ज्यादा डेप्थ में चलेंगे बहुत ज्यादा फैक्ट्स हो जाएंगे, हमें उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वी जस्ट नीड टू enhance our knowledge and make sure that this subject remains enjoyable। all right, so Indian linguistic tradition, इसकी भी हम बात करेंगे। phonology, morphology, syntax, semantics, सारी टर्म्स लैंग्वेज रिलेटेड है। डोंट वरी अगर इनके अभी मीनिंग्स नहीं पता, ग्रेजुअली वी विल गेट टू नो देयर मीनिंग्स एज वेल। ऑल राइट, देन इंडियन आर्टिस्टिक ट्रेडिशन, राइट? सो दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। हाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट व्हाट आर वेरियस आर्ट फॉर्म्स ऑफ इंडिया। ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स में क्या आर्ट फॉर्म्स हैं, ठीक है, पंजाब में कौन से हैं, हिमाचल में कौन से हैं, एंड आर्ट फॉर्म्स के साथ वी आर गोइंग टू टच अपॉन द कल्चर ऑफ वेरियस स्टेट्स एज वेल। अब कल्चर में काफी कुछ आ जाता है, राइट? सो कैन यू जस्ट टेल मी इन वन वर्ड व्हाट डू यू बिलीव, आपको क्या लगता है कल्चर में क्या क्या चीज इंक्लूडेड है? ठीक है, आप चैट में बताना चाहते हैं आप चैट में बता सकते हैं। इफ यू वांट टू अनम्यूट योरसेल्फ, यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज डू दैट। आई रियली वांट टू हियर कि आप कल्चर के बारे में क्या सोचते हैं, कि कल्चर की अब बात करते हैं तो कल्चर में क्या चीज इंक्लूडेड है। हाँ जी बच्चे, so again most welcome to unmute yourself and reply, or if you're comfortable replying in the chat, you can. I'll write the question in the chat again। हाँ जी, कपड़े। वंडरफुल, यस, द कपड़े जो हम कपड़े पहनते हैं। लैंग्वेज। वंडरफुल, वेरी गुड, लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चर। नेचर। नेचर, yes, even nature can be included, nature in the way how important is nature for us, right? अब इंडियन कल्चर में अगर आपने देखा हो, नेचर की पहले पूजा होती थी, राइट? बिफोर प्रेजेंट डे गॉड्स केम इन। जो बिल्कुल शुरू के गॉड्स कौन से थे? वायु, सूर्य, राइट? देन आई एम नॉट श्योर जल के लिए क्या वर्ड यूज होता है पर्टिकुलर, राइट? देन स्काई, इन सब चीजों की पूजा होती थी, नेचर की पूजा होती थी। दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ आवर कल्चर, दैट नेचर वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर कल्चर, राइट? देन इवन आवर डिफरेंट फेस्टिवल्स, राइट? यू एग्री विद मी? यस। वंडरफुल, यस। सो जो हमारे डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ आवर कल्चर ओनली। तो काफी कुछ आ जाएगा इसमें, हमारी ड्रेसेस आ जाएंगी, हमारा लाइफस्टाइल आ जाएगा। अब लाइफस्टाइल की बात करें तो उसमें कितना कुछ आ जाता है। व्हाट यू ईट, राइट? व्हाट यू वेयर, हाउ यू टॉक विद ईच अदर। जैसे इंडियन कल्चर का एक पार्ट क्या है कि हम गेस्ट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, राइट? वी आर वेरी हॉस्पिटेबल पीपल, अतिथि देवो भव, के गेस्ट्स आर लाइक गॉड, राइट? तो अगर आपने विलेजेस में देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा, इवन इन आवर फैमिलीज, whenever we know somebody is coming to our place, our mothers are so anxious, right? पूरा हम कैसे उसकी तैयारी करते हैं कि टू मेक श्योर जो हमारे गेस्ट हैं, दे आर कंफर्टेबल, दे एंजॉय देयर टाइम व्हाइल दे आर स्टेइंग विद अस। सो दिस इज अगेन पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, के ऐसे वी रियली आर वेरी हॉस्पिटेबल पीपल एंड वी रियली टेक केयर ऑफ आवर गेस्ट्स एज वेल। ऑल राइट, so on and so forth, this all will come within the purview of culture।
आर्टिस्टिक ट्रेडिशन भी इसका पार्ट है कि जो हमारे आर्ट फॉर्म्स हैं, आर्ट फॉर्म्स में बहुत कुछ आ जाएगा, पेंटिंग्स आ जाएंगी, पॉटरी आ जाएगी कि कुछ चीजें बनाना, स्कल्पचर आ जाएगा, हमारा इवन आर्किटेक्चर आ जाएगा, क्योंकि आर्किटेक्चर इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम आर्ट, राइट। तो इसमें भी हम काफी कुछ पढ़ेंगे, इवन हमारे फैब्रिक्स आ जाएंगे, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स हैं, राइट। इंडिया में क्योंकि वाई वी आर सो कल्चरली रिच नेशन, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज हैं, राइट। डिफरेंट एरियाज में the habits of people change, the eating habits change. Why? Because in terms of climate we are very diverse, in terms of vegetation we are very diverse. तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा फूड डिसाइड होता है, कपड़े डिसाइड होते हैं। नाउ लेट्स से लेह लद्दाख की बात करें, वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, इट्स अ कोल्ड डेजर्ट, राइट। तो वहाँ के लोगों की जो डाइट है वो उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस होगी, वहां पे जो चीज अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस होगी, उसी के अकॉर्डिंग दे विल ड्रेस अप। If we talk about Rajasthan, it's a completely different, landscape there. It's, half of it is filled with desert. It's complete sand. ठीक है, कुछ पार्ट में थोड़े से कह लो हिल्स भी हैं, उदयपुर वाला एरिया हो गया, लेक्स भी हैं। तो उसी से उनका कल्चर इन्फ्लुएंस होगा कि वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या उनका रूटीन है, क्या उनके फेस्टिवल्स हैं। ठीक है, जो अब एग्रीकल्चर वाले एरियाज है उसमें जो हमारे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, राइट। बट जो ट्राइबल रीजन है जहाँ पे ट्राइब्स रहते हैं, क्योंकि वो इतना एग्रीकल्चर को मे बी नहीं कर रहे, उनके लिए कुछ और फेस्टिवल्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनके अपने बहुत गॉड्स होते हैं, राइट। जैसे कोई भी जंगल में रह रहा है ना, उनके इवन इन विलेजेस, आपने मे बी हिमाचल का सुना हो दैट एवरी विलेज इट हैज इट्स ओन डिफरेंट, एक विलेज डीटी होती है, एक विलेज गॉड होता है, जिसको वो सारे दे रियली बिलीव इन दैट गॉड एंड दे प्रे फॉर दैट गॉड, इन ऑनर ऑफ दैट गॉड काफी कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये एक रीजनल गॉड वाला भी इधर इंडिया में कॉन्सेप्ट है, right? So now because India is a very diverse nation, no doubt that diversity has led to diversity of cultures as well, that diversity of what we wear, the food we eat, the festivals we celebrate, that is how it is linked together. And of course then diversity of art form as well, because art form will depend on what materials are available there. ठीक है, अब जहाँ पे एरियाज में मार्बल बहुत अवेलेबल है वहां पे आप मार्बल वाले स्ट्रक्चर्स देखेंगे, राइट। कहीं पे अगर सैंडस्टोन, रेड स्टोन है तो वहां पे वो वाले स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। सो इट इज ऑल इंटरलिंक्ड, इंटरकनेक्टेड, एंड इट इज ऑल वेरी वंडरफुल अगर आप इसके बारे में सोचो, राइट। सो हमारा जो कल्चरल रिचनेस है इट इज वास्ट। सो वी आर गोइंग टू ब्रीफली टॉक अबाउट दैट एज वेल। तो इंडियन आर्टिस्टिक ट्रेडिशन में भी हम थोड़ी बात करेंगे, बिकॉज आई एग्री विद यू, जो आपको भी लग रहा होगा जो ये फिलोसफिकल वाला होता है थोड़ा थियोरेटिकल हो जाता है, इसको हम प्रैक्टिकली इतना देख नहीं सकते अब हमारे आसपास। हाउएवर जो इंडियन आर्टिस्टिक ट्रेडिशन है इसके बारे में रीड करेंगे, दीज आर द थिंग्स व्हिच यू कैन एक्चुअली सी फॉर योरसेल्फ। अगर आपको कभी भी मौका मिलेगा डिफरेंट स्टेट्स में ट्रैवल करने का, देयर यू विल बी एबल टू सी दिस थिंग, you will be able to experience the culture of that place, right? And also I believe that is very important, being part of this country, we should know about other parts of our country, other states as well, in addition to our own state. All right, so this was just a very brief overview of the syllabus, what we are going to deal with in this subject for the rest of the semester. All right, so abhi I am going to acha bachcha, do you have the syllabus with you? Otherwise I can share it with you. I think that is more preferable, right? So मैं ये वाला syllabus ना copy paste करके I'll share it with you all as well, right? Other than that, you want to give any inputs? अगर आपकी तरफ से कोई suggestion है, how you want this subject to be taken up? आप ज़्यादा discussion prefer करते हो, आपको PPTs में ज़्यादा अच्छा लगता है, you want to see more of the videos on YouTube. See, I'm going to use all these resources, but I would also like to know what you prefer more. So if you have any suggestions for me, feel free to share them. Baki, I'll try to keep the class interesting. I understand it. So, first lecture, so I could see some of you joined late. So that's all right. No problem at all. Okay. But to get, the day started, we won't start on a boring note. We will start on a very interesting note. All right. Ma'am, there will be the final exam of this subject. हाँ जी रुद्रांश, क्या कह रहे हैं आप? Ma'am, there will be the exam of this subject.
हाँ जी एग्जाम तो in है बेटा, finals? हाँ जी इसका 100 मार्क्स का है, बट जैसे आपके सिलेबस में आई ऑल्सो गॉट कंफ्यूज कि आप इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों मेंशन्ड है, बट व्हाट आई रिमेंबर चेकिंग इट इज ओनली गोइंग टू बी इंटरनल फॉर 100 मार्क्स, राइट? So that could be a Yes, mix yes. of subjective and objective. I'll discuss that जब एग्जाम की टर्न आएगी, बट आपने एग्जाम की वरी नहीं करनी है, क्योंकि अगर कोई भी सिलेबस भी होगा I'll provide everything to you, right? तो उसमें आपको ये नहीं है कि यू हैव टू गो सर्च फॉर बुक्स और एनीथिंग, कुछ भी I'll give you one complete resources. अगर कुछ लिंक्स भी होंगे I'll give that to you in one place, ताकि आपके लिए प्रिपेयर करना मुश्किल ना हो। बाकी क्लासेस में डिस्कशन ओरिएंटेड रखेंगे तो आपको वैसे याद हो जाएगा। हाँ जी सौरभ, सो अबाउट ऑफलाइन क्लासेस द थिंग इज फॉर नाउ दे आर गोइंग ऑनलाइन, बट लेट्स होप सून इट कुड बी ऑफलाइन और मे बी इन द ब्लेंडेड मोड, राइट? तो अभी इसका कुछ डिसाइड नहीं हुआ, we just know okay for now the classes are going to continue online, but yes, if you have had at least one dose of your vaccination, you're most welcome to come visit the college if you have any doubts, any queries. तो आपके अगर कोई डाउट्स है यू कैन डेफिनेटली कम टू द कॉलेज अगर आपके एक डोज लग चुकी है, एंड यू कैन टॉक अबाउट योर डाउट्स एंड मीट योर टीचर्स फॉर द सेम। ऑल राइट, सो दैट वाज इट। अदरवाइज वी आर मीटिंग अगेन 5th लेक्चर में, तो बाकी बातें हम तब कर लेंगे। ऑल राइट, सो आई विल एंड द क्लास नाउ। ओके चलो।